دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 27 پیشکش میرے کارواں۔ مزید چند باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے صدف کے پاس آ گیا۔ ہماری مطلوبہ ایمبولینس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹ رہا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ ساحل کو نہایت ہی صفائی کے ساتھ کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا تھا۔ صدف نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمبولینس کا ڈرائیور عبد الکریم تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہو اور انہیں ان کے حسب منشا کہیں پہنچانے گیا ہو؟ اس بات کے امکانات کم از کم ہیں، میں نے صدف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ڈرائیور اپنی مرضی سے کبیر شاہ کا ساتھ دے رہا ہوتا تو اب تک اسے ہسپتال پہنچ جانا چاہیے تھا۔ طاہر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اسے گن پوائنٹ پر استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، قبل از وقت کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ عین ممکن ہے کہ عبد الکریم کی اپنی مرضی سے کبیر شاہ کے ساتھ ہو اور ساحل کو کسی خفیہ ٹھکانے پہنچانے کے بعد ادھر کا رخ کرے۔ صدف نے کہا کہ اس واقعے نے تمہارے ذہن پر بہت ہی برا اثر کیا ہے۔ تم پہلے ایک بات کہتے ہو، پھر خود ہی کمزور دلیل کے ساتھ اس کی نفی کر دیتے ہو۔ تم ایسے تو نہیں تھے وجدان؟ ہاں، میں ایسا نہیں تھا، میں نے غراہٹ سے مشابہ انداز میں کہا۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، پاشا انکل نے کیا کہا ہے؟ اس نے 1 گھنٹے بعد فون کرنے کو کہا ہے۔ میں نے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب تک وہ وہاں رکھا والی گاؤں کے حالات سے باخبر ہو جائے گا۔ میں صدف کو بتا چکا تھا کہ ساحل میرے ایک دشمن دیرینہ چودھری نوازش علی کی قید میں تھی، جو رکھا والی کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اسی حوالے سے اس نے سوال کیا کہ رکھا والی سید پور کے نزدیک ہی ہے، دونوں گاؤں میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ حائل ہے۔ میں بدستور گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحات کی ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے مجھے تکتی رہی، پھر گہرے لہجے میں بولی، تو اس کا مطلب ہوا تم در حقیقت سید پور نہیں بلکہ رکھا والی جانے والے تھے۔ وہ تو پاشا انکل کے والد کی ڈیتھ بیچ میں آگئی، ورنہ تمہارا پروگرام رکھا والی ہی کا تھا۔ وہ زود فہم لڑکی میری کمزوری کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس نے خیال کی انگلیوں سے میری دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا تو میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے صدف، میں سید پور میں بیٹھ کر رکھا والی کے معاملات کو دیکھنا چاہتا تھا۔ فرید پاشا اس سلسلے میں میری بھرپور مدد کرنے والا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے مزید بتایا، میں کراچی سے یہی سب کچھ ارادہ لے کر لاہور پہنچا تھا اور آگے سید پور جانے والا تھا۔ وہ اس بات میں اس طرح سر ہلانے لگی جیسے میری باتوں کی تہہ تک پہنچ رہی ہو۔ پھر اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کرتی یا مجھ سے کوئی اور سوال پوچھتی، مجھے چونکنا پڑا۔ میں مسلسل ہسپتال کے گیٹ کو دیکھتا رہا اور میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ وہاں سے ایک سفید ٹویوٹا ہائیس اندر داخل ہو رہی تھی، وہی ایمبولینس جس کا نمبر 369 تھا اور جو میری ساحل کو رکھا والی سے لے کر لاہور پہنچی تھی۔ صدف نے میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کر لیا اور میری نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی نظر بھی ایمبولینس تک جا پہنچی۔ ایمبولینس گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد آہستہ روی سے پارکنگ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس میں سوائے ڈرائیور کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا مطلوبہ فرد کو وہ کسی خاص مقام پر پہنچا آیا تھا۔ صدف نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، وجدان یہ تو وہی ایمبولینس ہے؟ ہاں وہی ہے، میں نے خوابناک لہجے میں کہا۔ تم عبد الکریم کے پیچھے لگ جاؤ، تھوڑا فاصلہ رکھ کر میں بھی آ رہا ہوں۔ ہسپتال کے اندر کسی قسم کی جارحانہ کارروائی مناسب نہیں ہوگی، ہم اسے کسی طرح گھیر کر باہر لے کر چلتے ہیں، پھر اس کی زبان کھلوائیں گے۔ صدف نے میری تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم یکے بعد دیگرے اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہسپتال سے باہر آ رہا تھا۔ توفیق کی زبانی مجھے عبد الکریم کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ میں ان سے کام چلا کر مزید بہت کچھ اگلوا سکتا تھا۔ وہ راولپنڈی کے علاقے ڈھوک کھبا کا رہنے والا تھا اور لاہور میں کوٹ لکھپت میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور ایک بچے کا باپ تھا۔ وہ عموماً یہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے بیوی بچے ڈھوک کھبا راولپنڈی میں رہتے تھے، لیکن سال میں 1-2 ماہ کے لیے وہ انہیں اپنے پاس لاہور بلوا لیتا تھا۔ اسی طرح ایک آدھ مرتبہ وہ 8-10 دن کے لیے راولپنڈی چلا جاتا تھا۔ ان دنوں عبد الکریم کی فیملی لاہور کوٹ لکھپت آئی ہوئی تھی اور وہ وہاں کرائے کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ توفیق نے مجھے اس کے کوارٹر کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ میں نے عبد الکریم کو ہائلکس کی جانب لاتے ہوئے کہا، راولپنڈی سے تمہارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جو ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اسے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا تھوڑی دیر پہلے آپ ہی مجھے اسپتال میں ڈھونڈ رہے تھے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تمہیں بالکل صحیح بتایا گیا ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا، اب تم فوراً ہمارے ساتھ چلو۔
क्या आप लोग मुझे अपने घर ले जाएंगे? और कहाँ ले जाएंगे? सदफ ने कहा, जहाँ तुम्हारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं तुम्हें वहीं जाना होगा। उसने एक लम्हे के लिए शक अमीज नजर से मुझे देखा। अगर मेरे साथ सदफ ना होती तो शायद वो मेरी बात पर एतबार न करता, लेकिन सदफ की मौजूदगी में वो ज्यादा पसोपेश न कर सका। सिर्फ इतना पूछा कि मैं तो आप लोगों को नहीं जानता, मेरे मेहमान आपके घर में कैसे पहुंच गए? वो हमारे घर में खुद नहीं पहुंचे, बल्कि हम अजराए हमदर्दी उन्हें अपने साथ ले गए थे। मैंने उसे चक्कर दिया। वो पहली मर्तबा लाहौर आए हैं, तुम्हारा पता ढूंढते फिर रहे थे। हमसे मुलाकात होगी, हम एक मरीज को देखने इस तरफ आना था। सोचे जाते हुए तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हम काफी देर से इधर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो मेरी बातों में आ गया और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसकी मजीद तसल्ली के लिए कहा, तुम रावलपिंडी में ढोक खब्बा के इलाके में रहते हो ना? वो उधर ही से आए हैं। तौफीक से हासिल शुदा मालूमात ने खासा काम दिखाया था और वो मुतमीन होकर हमारे साथ टोयोटा हाइलक्स में बैठ गया। मैं फिलहाल उस गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहता था। हाइलक्स कैंप्स के इलाके में निकलने लगी तो सदफ ने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैं समझ गया था वो मुझसे क्या पूछना चाहती है। जाहिर है वो आइंदा मंजिल के बारे में जानना चाहती थी। मैंने इसकी उलझन दूर करने के लिए अब्दुल करीम को मुहातिब करते हुए कहा, फाजले कॉलोनी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम तुम्हें बहुत जल्द फारिग कर देंगे। सदफ के होंठों से एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज हुई। अब्दुल करीम से पूछताछ के लिए पाशा की उस कोठी से ज्यादा मौजू और कोई जगह नहीं हो सकती थी। वो कोठी पिछले कुछ अरसे से खाली पड़ी थी, लेकिन मेरी लाहौर में आमद के साथ ही जैसे खुदा ने उसकी सुन ली थी। अब सुबह शाम वहाँ अच्छी खासी रौनक रहने लगी थी। वो कोठी मेरे लिए एक तफ्तीशी सेल की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। अब्दुल करीम भी सवाल जवाब के लिए चंद लम्हों बाद वही पहुंचने वाला था। मैंने फिरोजपुर रोड पर आने के बाद गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। हमारे दरमियान गाहे बगाहे बामानी नजरों का तबादला हो रहा था। हमारे से मुराद मेरे और सदफ के दरमियान। अब्दुल करीम खामोश बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। वो हमारे साथ चला तो आया था, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद वो किसी उलझन का शिकार नजर आने लगा, जैसे वो ये फैसला न कर पाया हो कि उसने हमारे साथ आकर अच्छा किया या उससे हमारे साथ आने में गलती सरजद हो गई थी। खामोशी के तवील वक्फे के दौरान में उसने एक मरतबा मुझसे पूछा, मैं अस्पताल से सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, मुझे 3 बजे से पहले वापस ड्यूटी पर पहुँचना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें अपने घर में रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम हाँ परेशान हो रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारी मजबूरी है तो हम तुम्हें क्यों रोकेंगे? तो बस तुम्हारे मेहमानों को तुम्हारे हवाले करेंगे और ठीक 10 मिनट के बाद हम अपने घर में होंगे। मेरे इत्मीनान दिलाने के बाद उसके चेहरे पर सुकून के आसार नमूदार हुए। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप लोग दूध का कारोबार करते हैं? हमारी शख्सियत, लिबास और खुलिया किसी भी तौर पर दूध का कारोबार करने वालों जैसा नहीं था, इसलिए अब्दुल करीम का उलझाव फितरी था। दूध के ड्रम से लदी फंदी टोयोटा हाइलक्स किसी तौर भी हमसे फिट नहीं होती थी, और जो बंदा इस सेटअप में फिट होता था उसे हम कहीं और फेंक आए थे। मैंने अब्दुल करीम के पूछने के जवाब में उसको कहा कि हम मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करते हैं। हमारा अपना एक डेयरी फार्म है। दूध, दही, मक्खन और करीम, हर शय का कारोबार करते हैं हम। हत्ता कि हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें भी हैं जो करीम की करीम भी निकाल सकते हैं। करीम की करीम, उसने चौंक कर सवालिया नजर से मुझे देखा। करीम की करीम, उसने चौंक कर सवालिया नजर से मुझे देखा। हाँ, मैंने सफाकी से कहा, करीम की करीम भी और निहायत ही उम्दा करीम। अब्दुल करीम परेशान नजरों से मुझे तकने लगा। मेरे लहजे में छुपी संगीनी को शायद उसने महसूस कर लिया था, लेकिन सरसरी लहजे में बोला, मगर आप लोगों को लेकर देखकर लगता तो नहीं कि आप लोग दूध दही का कारोबार करते होंगे। हमें देखकर तुम्हें क्या अंदाजा हो रहा है? मैंने उससे पूछा। वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब है आप तो पढ़े लिखे और बाबू टाइप नजर आते हैं। दूध का कारोबार, मैंने बात काटते हुए कहा। अब्दुल करीम, क्या पढ़े लिखे और साफ सुथरे नजर आने वाले लोग दूध का कारोबार नहीं कर सकते? वो नदामत अमीज नजर से मुझे देखने लगा। मैंने मजीद कहा, वैसे इतना बता दूं कि हम डेयरी फार्म के मालिक हैं, यानी सेठ हैं। काम हमारे दर्जनों मुलाजिम करते हैं और चंद ही लम्हों के बाद तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे। तो क्या आप लोग मुझे अपने डेयरी फार्म लेकर जा रहे हैं? मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए असबात में सर हिला दिया। वो और ज्यादा उलझ गया और सटपटाए हुए लहजे में कहा, मगर आपने तो बताया था कि मेरे मेहमान आपके घर में ठहरे हुए हैं। मैंने तुम्हें गलत नहीं बताया था। मैंने गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाते हुए कहा, दरअसल हमारा घर डेयरी फार्म के रास्ते में पड़ता है। मुझे 5 मिनट का एक जरूरी काम है। डेयरी फार्म को टच करते हुए घर की तरफ जाएंगे।
मेरी इस मुबहम वजाहत से वो मजीद उलझ गया। उसके लहजे में अब खौफ की आमेज़िश थी। एक लम्हा खामोश रहने के बाद उसने अपनी पेशानी को मसलते हुए कहा, आपने अपना नाम क्या बताया था? उसका ये सवाल ज़हनी इंतशार का गमाज था, क्योंकि मैंने अभी तक उसे अपना नाम नहीं बताया था। और उसकी परेशानी का फायदा उठाते हुए मैंने कहा, अब्दुल करीम, लगता है तुम्हारी याददाश्त खासी कमजोर है। चंद लम्हे पहले बताए हुए हमारे नाम भी तुम भूल गए हो। इस दौरान में सदफ बिल्कुल खामोश रही। वो मेरे अंदाज को बखूबी समझ रही थी। मैंने अब्दुल करीम से कहा कि चलो खैर, कोई बात नहीं, इंसान खिलाफे मामूल कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे तो जहन फारिग हो जाए तो उसके अंदाज में बेपरवाही आ ही जाती है, और बेपरवाही का सबसे ज्यादा असर इंसान की जहनी याददाश्त पर होता है। वो सहमी ही नजर से मुझे तकने लगा। खिलाफे मामूल कोई बहुत बड़ा कारनामा, उसकी जुबान से सिर्फ इतना अदा हुआ। मैंने कहा, तुम आज सुबह ही सुबह बहुत तवील सफर किया है ना? तेज रफ्तारी से कच्चे पक्के रास्ते पर एम्बुलेंस दौड़ाना कोई आसान काम तो नहीं। उसकी सहमी आंखों में सरासीमगी उतर आई थी। खौफ में डूबी हुई आवाज में उसने कहा, आप वो नहीं है जो नजर आते हैं। मैंने आपके साथ गाड़ी में बैठकर सख्त गलती की। अब तो ये गलती हो चुकी है अब्दुल करीम, मैंने फुंकार से मुशाबा आवाज में कहा। फिर उसका खौफ दूर करने की गरज से मोतदल अंदाज में कहा, तुम हाँ परेशान हो रहे हो। हम वही हैं जो तुम्हें बताया है। तुमने हमारे नाम भूलने की गलती की है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरे फिरोजपुर रोड को अलविदा कहते हुए शाहजमाल रोड पर गाड़ी मोड़ चुका था। फिर अब्दुल करीम से कहा कि मेरा नाम वजी है और ये मेरी बिजनेस पार्टनर सदफ है। मैंने सदफ की जानिब इशारा कर दिया। और ये तो तुम्हें याद ही है ना कि हमारा दूध का बिजनेस है, यानी डेयरी फार्म। मेरी इस तंज अमेज वजाहत से उसकी उलझन में कोई कमी वाक़या न हुई। उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछा, लेकिन आपको ये बात कैसे मालूम हुई कि आज एक तवील सफर मैंने तय किया है? तुम्हारी सिर्फ याददाश्त ही कमजोर नहीं बल्कि तुम अहमक भी हो। मैंने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, तुम एम्बुलेंस ड्राइव करते हो। अस्पताल से मुझे तुम्हारे बारे में ये मालूम हुआ था कि तुम आज सुबह एक डेड बॉडी अहमदनगर छोड़ने गए थे। अहमदनगर दूर दराज का एक गाँव है। क्या इन मालूमात की रोशनी में मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुमने तवील और पुरमुशक्कत सफर किया है? ओ, उसने इत्मीनान बख्श तवील सांस खारिज करते हुए कहा, मैं कुछ और समझा। आखिरी अल्फाज अदा करने के बाद वो हाथ से रिलैक्स दिखाई देने लगा। मैं कुछ और समझा था का मफहूम और तशरीह जानता था। वो ये जानकर मुतमईन हो गया था कि उसकी वापसी के सफर की तफसीलात से मैं आगाह नहीं था। चौधरी निजामुद्दीन की डेड बॉडी को अस्पताल से अहमदनगर पहुंचाना एक निसाबी कार्रवाई थी, लेकिन साहिल को रखावाली से लेकर आना और किसी खुफिया मुकाम पर पहुंचाना गैर निसाबी सरगर्मी थी। अब्दुल करीम की दानिश में मैं उसके कच्चे चट्टे से ना वाकिफ था। मैंने उसे उसी खुशफहमी में रहने दिया और पूछा, ढोक खब्बा में तुम कहाँ के रहने वाले थे, यानी तुम्हारा घर किस तरफ है? उसने जवाब दिया, कैफे निसार के नजदीक। आजकल तुम्हारे बीवी बच्चे यहीं आए हुए हैं? उसने चौंक कर मुझे देखा और इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, तुम उधर कोट लखपत में किराए के क्वार्टर में रहते हो ना? उसकी हैरत और बढ़ गई, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तुम्हारे मेहमानों ने चंद बातें बताई हैं। मैंने ठोस लहजे में कहा, वो तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार हैं, शायद तुम्हारी बीवी ने जानती है। वो बता रहे थे कि तुमसे पहले कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई। तुम उनसे मिलकर हैरान रह जाओगे। अभी तो मैं आपसे मिलकर हैरान हूँ, वो बेसाख्ता बोला। मैंने फरीद पाशा की कोठी के सामने पहुंचकर हाइलक्स रोक दी। कोठी के बंद गेट को देखकर अब्दुल करीम की आंखों में एक मरतबा फिर उलझन आ गई, और जब किसी मुलाजिम ने आकर गेट नहीं खोला बल्कि ये काम मैंने अंजाम दिया तो वो पूछे बगैर न रह सका, वजी साहब, क्या आपका डेयरी फार्म यही है? थोड़ी देर पहले उसका जो खौफ कदरे ज़ायल हो गया था उसमें बेपनाह इजाफा हो गया था। मैंने हाइलक्स को कोठी के अंदर पहुंचा दिया। फिर गेट को बंद करने के बाद अब्दुल करीम के सवाल का जवाब दिया, हाँ, ये हमारे डेयरी फार्म का एक हिस्सा है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? ये बात नहीं जनाब। वो कोठी के अंदर चारों जानब निगाह दौड़ाने के बाद मुझसे पूछने लगा, यहाँ तो खामोशी और सन्नाटा है, कोई भी वर्कर नजर नहीं आ रहा। ये किस किस्म का डेयरी फार्म है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने ज़हन पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश ना करो, सदफ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अभी उसने बहुत ही मुफीद मालूमात उगलना है। वजी ने तुमसे झूठ बोला। ये कोठी हमारे डेयरी फार्म का एक हिस्सा है। यहाँ सिर्फ करीम निकालने वाली 2 मशीनें नस्ब हैं। हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमने पिछले दिनों में कितनी करीम निकाली है। सारा माल एक तहखाने में रखा है, संभाल कर। मैंने कोठी के हालनुमा कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, सदफ, तुम इस बेचारे को आधी बात क्यों बता रही हो? साफ क्यों नहीं बता देती? अब्दुल करीम ठटक कर रुक गया। फिर खौफजदा लहजे में बोला, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने आप लोगों की बात का यकीन करके सख्त गलती की है।
یہ کوئی ڈیری فارم نہیں ہے اور نہ ہی یہاں میرے مہمان موجود ہیں. آپ لوگ بہت ایمانی ہے اور خوفناک باتیں کر رہے ہیں, مجھے جانے دو. اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دیا اور صفاقی سے کہا, جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا ہے تو پھر اس غلطی کی سزا بھی ضرور ملے گی. ویسے ہم نے تم سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی. تمہارے مہمان ڈیری فارم پر نہیں بلکہ ہمارے گھر پر موجود ہیں. ایک ضروری کام سے نمٹنے کے بعد ہم گھر کی طرف جائیں گے. اگر تم امتحان میں کامیاب ہوگے تو تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کا یقین ہو گیا تھا. میری بات کے اختتام پر اس نے کپکپاتی ہی آواز میں کہا, تم لوگ میرا کیسا امتحان لوگے؟ میں اسے دھکیلتے ہوئے حال نما کمرے میں لے آیا. یہ وہی وسیع اور اس کمرہ تھا جہاں 2 روز قبل میں نے منشا کے آدمی کی ٹھکائی کی تھی. فیض احمد اور گینڈا نما قادر بخش اس وقت خفیہ تہخانے میں موجود تھے. مذکورہ تہخانے کا راستہ بھی اسی حال کی دیوار میں تھا. میں نے عبد الکریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا, امتحان بہت ہی سادہ اور آسان ہے. ہم دونوں ہی کریم نکالنے والی مشینیں ہیں اور تم ہو کریم, اور ہم کریم کی کریم نکالنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر تم نے تعاون کیا تو ٹھیک, ورنہ تمہیں بھی وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں تمہارے جیسے چند افراد آرام فرما رہے ہیں. تم لوگ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ میں نے سنگین لہجے میں پوچھا. ساحل کو تم کہاں پہنچا کے آئے ہو؟ ساحل؟ وہ ہونکو کی طرح میرا چہرہ تکنے لگا. میں نے ایک زناٹے دار چانٹے سے اس کا گال سلگا دیا. پھر کہا, میں اس ساحل نامی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جسے تم اپنی ایمبولینس میں رکھا والی سے لے کر آئے ہو. وہ گاڑی میں اسٹریچر پر ایک سفید چادر کے نیچے لیٹی تھی. بتاؤ تم نے میری ساحل کو کہاں چھپایا ہے؟ اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈ گئی. اسے یقین ہو گیا کہ ہم اسے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے, تاہم اس نے ہمیں چکر دینے کی کمزور سی کوشش کی. آپ میری بات کا اعتبار کریں, میں کسی ساحل کو نہیں جانتا. اس کا لہجہ کھوکھلا اور الفاظ اعتبار سے حالی تھے. شاید آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہو. میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے سینے پر ایک زوردار فرنٹ پش کک رسید کی. وہ 6 فٹ پیچھے پش کے بل زمین بوس ہو گیا. میں اچھل کر اس کے قریب پہنچا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا, تم اس فیلڈ کے نہیں ہو, اس لیے بہتر ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ. میں نے ایک راحت امیز انداز میں کہا, ہاں مجھ سے ہاتھ پاؤں نہ تڑواؤ. اپنے بیوی بچوں کا ہی کچھ خیال کر لو. اگر تم زندہ نہ رہے یا اپاہجو کی طرح زندگی گزارنے کے قابل بنا دیے گئے تو کیا کرو گے؟ تمہارے بیوی اور بچے کہاں کہاں بھیک مانگے گئے؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا, پھر تنبیہی انداز میں کہا, یہ بات ذہن سے نکال دو کہ مجھے کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. سید پور اور فتح گڑھ کے درمیان میں تمہاری ایمبولینس میرے نزدیک سے گزری تھی. اگر میری گاڑی میں خرابی پیدا نہ ہو گئی ہوتی تو میں تمہیں فتح گڑھ کے قریب ہی گھیر لیتا. تمہارے ساتھ پیسنجر سیٹ پر کبیر شاہ بیٹھا تھا اور 2 افراد پیچھے ہائیس کے پچھلے حصے میں تھے. کیا تمہیں یقین آیا؟ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے اس کے سینے پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے مزید کہا, تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کتنی گہری معلومات رکھتا ہوں. ہمارے 2 مسلح ساتھی اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہیں جنہوں نے تمہاری بیوی بچے کو نشانے پر لے رکھا ہے. اگر تم نے تعاون کیا تو تمہارے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. مسلح ساتھیوں والا قصہ تو میں نے اس کی سٹی گم کرنے کے لیے گھڑا تھا. وہ مجھے ہاسا متاثر نظر آیا. میں نے کہا کہ عبد الکریم, زندگی ایک بار ملتی ہے, کیوں اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی زندگی کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو ادھر تم جان سے جاؤ گے اور ادھر تمہارے بیوی بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا. بولو کیا کہتے ہو؟ میری بات مانو گے یا میں اپنے ساتھیوں کو کوٹ لکھپت فون کر دوں؟ اس کی مزاحمت جواب دے گی, اپنے پیاروں کی زندگی کا سوال بہت ہی آزمائشی ہوتا ہے. میں نے مجبوراً ایک جھوٹ کا سہارا لیا تھا. تھوڑی مار پیٹ کے بعد بھی اس کی زبان کھلوائی جا سکتی تھی, لیکن اس کاروائی میں وقت ضائع ہوتا اور عبد الکریم کا شدید زخمی ہونا بھی لازمی بات تھی. وہ بیچارہ لڑائی بھڑائی کے معاملات میں کچا نظر آتا تھا. اس کی آنکھوں میں مجھے آمادگی کے تاثرات نظر آئے تو میں نے اس کے سینے سے پاؤں ہٹا دیا. وہ ڈرتے ڈرتے اٹھا اور کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا. کمزور سی آواز میں سے سوال کیا, آپ لوگوں کو مجھ سے اور میری بیوی بچوں سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی نہیں, میں نے سادگی سے کہا, لیکن اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو تم ہی میرے دشمن اول ہوگے. میں تو صرف تمہیں 2 منٹ کی مہلت دیتا ہوں اور یہ مہلت میرے خاموش ہوتے ہی شروع ہو جائے گی. بولو, میرے اس ساحل کو تم نے کسی کبیر شاہ کے ایما پر کہاں پہنچایا ہے؟ میں کسی کبیر شاہ کو نہیں جانتا, وہ گگیایا. میں نے جو کچھ کیا ہے وہ وحید صاحب کے کہنے پر کیا ہے. گویا تم نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ مان لیا ہے کہ تم ساحل کو رکھا والی سے لاہور پہنچا کر آئے ہو. مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس لڑکی کا نام ساحل ہے جو میری ایمبولینس میں یہاں پہنچی ہے.
उसे सहमी नजर से मुझे देखते हुए कहा, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं साहिल या कबीर शाह से वाकिफ नहीं। वहीद साहब ने कहा कि एक लड़की को लाना है। मैंने उनका कहना मान लिया क्योंकि मैं उनका कहना टाल ही नहीं सकता। मैंने साहिल और कबीर शाह का हुलिया बयान किया तो अब्दुल करीम ने तस्दीक कर दी। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई, गोया अपनी छठी हिस्स के पुकार के पर ध्यान देकर मैंने कोई गलती नहीं की थी। सफेद चादर से ढके हुए स्ट्रेचर पर साहिल के सिवा और कोई नहीं था। मुझे अपने तन बदन में एक राहत सी उतरती महसूस हुई। साहिल का सुराग मिल गया था, ताहम वो अभी तक मेरी पहुंच से दूर थी और उस तक मुझे सिर्फ अब्दुल करीम ही पहुंचा सकता था। मैंने कहा, तुमने जुबान खोलकर अक्लमंदी का सबूत दिया है, वरना तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे आज जान हार जाते। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अब साहिल का पता भी जल्दी से बता दो ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। एक लम्हे को रुककर मैंने पूछा, और ये तुम्हारे वहीद साहब कौन हैं? क्या बेचते हैं? तुम उनका कहा क्यों नहीं टाल सकते? वो बोला, वहीद साहब के मुझ पर बहुत ही एहसानात हैं। इस अस्पताल में उन्होंने मुझे मुलाजमत दिलवाई थी, वरना इससे पहले मैं 4 नंबर रोड पर वैगन चलाता था और काम बहुत ज्यादा और आमदन कम थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। मैं वहीद साहब को दुआएं देता हूँ। किसी वहीद साहब का मेरी साहिल में दिलचस्पी लेना मेरे लिए नहायत ही अहम था। मुझे यकीन था कि उसका ताल्लुक भी कबीर शाह से ही हो सकता है, यानी शोएब गौरी से। कबीर शाह अपने अड्डे से गायब हो गया था। जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब पुलिस ने साउथ पर भरपूर कार्रवाई की तो कबीर शाह फरार होने का उसको भरपूर मौका मिल गया। शोएब गौरी ने अपने दस्ते राज के फरार और रूपोशी से ला इल्मी जाहिर की थी। गुज़श्ता रात फोन पर उससे मेरी तफसीली बात हुई थी। इस गुफ्तगू में हम 2 खुले दुश्मनों की तरह एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और शोएब ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में मुझे धमकी दी थी कि उसने मेरा बंदोबस्त करने के लिए निहायत ही खतरनाक लोगों से गठजोड़ कर लिया है। शोएब की धमकी का नतीजा भी मुझे फौरन ही देखने को मिल गया था। कबीर शाह का साहिल के साथ रखावाली से लाहौर पहुंचना साबित करता था कि शोएब गौरी और चौधरी नवाज शलीमी को निहायत ही अहम डील हुई है। मेरे हदशात 100% दुरुस्त साबित हो रहे थे। मेरे 2 दुश्मनों ने आपस में इल्हाक कर लिया था। अब्दुल करीम के जवाब ने अगरचे मेरी उलझन को बड़ी हद तक दूर कर दिया था, ताहम अभी भी बहुत से गोशे जवाब तलब थे। मैंने उससे पूछा, तो तुम आज सुबह चौधरी निजामुद्दीन की लाश के साथ अस्पताल से अहमदनगर रवाना हुए, फिर रखावाली कैसे पहुंच गए? वो थूक निकलते हुए बोला, बात दरअसल ये है जनाब कि कल रात गए वहीद साहब ने मुझसे राब्ता करने को कहा। मैं उन्हें चंद घंटों के लिए अस्पताल की एम्बुलेंस चाहिए। एक मरीजा को किसी गांव से लाहौर पहुंचाना है और ये काम ऑफ द रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। मालूमात करने पर मुझे पता चला कि अस्पताल में दाखिल एक मरीज का इंतकाल हो गया है और सुबह उसकी लाश अहमदनगर पहुंचाई जाएगी। अहमदनगर जाने वाली एम्बुलेंस ड्राइवर से मैंने बातचीत की और उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि उसकी जगह मैं जाऊंगा। हम लोग एक दूसरे की जगह ड्यूटी कर लेते हैं, ये कोई खास बात नहीं। वही साहब मुझे बता चुके थे कि मरीजा को रखावाली से लाना होगा। अहमदनगर रखावाली के शिमाल में है और 2-2.5 किलोमीटर दूर वाक़या है, इसलिए मैं ये काम आसानी से कर सकता था और आसानी से हो गया। अब्दुल करीम की बात खत्म हुई तो मुझे अपने दिल से एक टीस उठती महसूस हुई। उसे 2 मरतबा साहिल के लिए मरीजा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने तड़प कर पूछा, क्या साहिल बीमार है? अगर वो बीमार होती तो उसे अस्पताल में दाखिल किया जाता। वो बोला, मैंने उसे वहीद साहब की कोठी पर पहुंचाया है। मैं नहीं जानता उस लड़की का क्या किस्सा है जनाब, वो तो इस सफर के दौरान बिल्कुल बेहोश पड़ी रही। एक लम्हे को रुक कर उसने कहा, आपके रवैये से तो लगता है कि आपकी कोई करीबी रिश्तेदार है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। साहिल की तस्दीक हो जाने के बाद एक एक पल मुझ पर क़यामत बनकर टूट रहा था। मैंने अब्दुल करीम की सुनी अनसुनी करते हुए भराई हुई आवाज में पूछा, वहीद की कोठी किस तरफ है? वो एक लम्हे के लिए मुझे मुतामिल नजर आया। मैंने फुंकार कर कहा, अब्दुल करीम, अगर इस मरहले पर तुमने किसी गड़बड़ की कोशिश की तो मैं तुम्हारा नरहरा काटने में एक लम्हे की ताहीर नहीं करूंगा। और ये भी जहन में रखो कि उसके बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का कैसा हसरतनाक अंजाम होगा। मेरे लहजे की वहशत ने उसे लर्जा कर रख दिया। वो फंसी फंसी आवाज में बोला, वहीद साहब उधर मुस्लिम टाउन में रहते हैं, मगर खुदा के वास्ते आप मुझे इस चक्कर से अलग कर दे। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। साहिल मेरे लिए सब कुछ है। मैंने गुंजीली आवाज में कहा, तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश की है। तुम खुद इस चक्कर में कूदे हो, खुद। मेरे लहजे की सफाकी बढ़ती चलेगी। अब तुम किस तरह अलग होना चाहते हो? मुस्लिम टाउन काफी बड़ा इलाका है। वहीद की कोठी का ठीक ठीक पता बताओ। बात खत्म करते ही मैंने दोनों बाजू फैलाकर उसकी जानेब बढ़ा दिए। अंदाज ऐसा ही था मैं उसकी गर्दन दबोचने का इरादा रखता हूँ। वो वहशतज़दा होकर नफी में गर्दन झटकने लगा और फिर थरथराई हुई आवाज में बोला, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, खुदा के लिए मुझे न मारना। वही साहब आप पारा मार्केट के करीब रहते हैं।
फिर उसने कोठी का जो नंबर और लोकेशन बताई, उसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। सदफ भी हैरत से मुझे देख रही थी। अब्दुल करीम मंशा की कोठी का एड्रेस बता रहा था। मैंने जहरीले लहजे में कहा, ये सफेद रंग की एक छोटी 2 मंजिला कोठी है ना? जी जी वही। उसने अस्वात में गर्दन हिलाई। लेकिन यहाँ पर तो मंशा नामी कोई जराइम पेशा शख्स रहता है। मैंने कहा, कोठी के गेट पर किसी शमशाद अली एडवोकेट के नाम की तख्ती लगी है। अब्दुल करीम ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस लड़की को उसी कोठी में पहुंचाया है। शमशाद अली वही साहब के बड़े भाई हैं, लेकिन मंशा नामी कोई भी शख्स वहां पर नहीं रहता। एक बेहोश लड़की को एम्बुलेंस में डालकर किसी दूर दराज गांव से लाहौर जैसे शहर लाया गया। फिर उसे किसी अस्पताल पहुंचाने की बजाय कोठी में ले जाया गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, जुर्म और किसे कहते हैं? तुम्हारे वही साहब और उनका भाई शमशाद अली कुछ शरीफ लोग नहीं हो सकते। मैं ऐसे शरीफ बदमाश के माशरी नासूरों से अच्छी तरह निपटना जानता हूँ। मैंने सदफ की तरफ देखते हुए कहा, हमने बहुत ही वक्त जाया कर दिया है। मेरी आवाज ने बर्राहट को वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था। वो बोली, जो वक्त हाथ से निकल गया है उस पर मातम क्या करना। अब हमें एक लम्हे की ताहीर नहीं करनी चाहिए। मंशा की कोठी हम पिछली रात देख चुके हैं। एड्रेस मुश्किल नहीं, वो रास्ता अभी तक मेरे जहन में महफूज है। फिर वो अब्दुल करीम की जानब देखते हुए बोली, इसका क्या करना है? कैसी भी वहीं पहुंचा दे? सदफ का इशारा वाज़ेह था, वहीं पहुंचा दे से उसकी मुराद खुफिया तहखाना थी, जहां हमारे चंद दुश्मन पहले ही पहुंचाए जा चुके थे। इन्हीं में से एक शख्स कादरबख्श की जुबान ही मुझे मंशा के बारे में पता चला था। मुझे मंशा उन लोगों का बास था जो किसी चौधरी दिलदार के लिए काम करते थे। गोया इनका बास चौधरी दिलदार था। इस तनाजुर में अगर देखा जाता तो मंशा और चौधरी दिलदार के डांडे रखा वाली के चौधरी नवाजिश अली से जा मिलते थे, क्योंकि साहिल को रखा वाली से मंशा की कोठी पर पहुंचाया गया था। अब ये खेल वाज़ेह होता जा रहा था। मंशा के भेजे हुए आदमियों की दुश्मनी मुझे समझ में आने लगी थी। वो लोग अगर मेरी तलाश में थे तो इसका एक ही मतलब था, चौधरी नवाजिश अली को मेरी तलाश थी। गोया अब तक हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। सेकंड के 10वें हिस्से में ये तमाम बातें मेरे जहन में से गुजर गईं। सदफ ने मुझसे पूछा तो, लेकिन मेरे जवाब से पहले ही अब्दुल करीम ने मन्नत अमेज लहजे में कहा, मैंने आपसे तावन किया है, आपके हर सवाल का जवाब दिया है। अब आप मुझे जाने दें, मुझे 3 बजे अस्पताल पहुंचना है। अस्पताल को फिलहाल भूल जाओ। मैंने रुखाई से कहा, अब ये बताओ कि आज तुम्हें घर कितने बजे पहुंचना था? अगर जिंदगी ने वफा की तो तुम सही सलामत घर जरूर पहुंचोगे। आप वादा खिलाफी कर रहे हो, वो हफ्की अमेज अंदाज में बोला। मैंने कहा, अब्दुल करीम, मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारे बयान की तस्दीक जरूरी है और मैं इस बयान की तस्दीक के लिए रवाना हो रहा हूँ। जब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे, मैं तुम्हें खुफिया मेहमान खाने में पहुंचा देता हूँ, जहाँ हमारे चंद और भी गैरहा मौजूद हैं। एक लम्हे को रुककर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारा कहा हुआ दुरुस्त साबित हुआ तो तुम जिंदा सलामत अपने बीवी बच्चों के पास जाने के लिए आजाद होगे। वो घुघिया कर मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और खुफिया रास्ता इस्तेमाल करके उसे कोठी के तहखाने में पहुंचा दिया। वहां का नजारा देखकर उसके होश हता हो गए। वो फटी हुई आंखों से एक एक का चेहरा देखने लगा। फिर उसकी निगाह छत से झूलते हुए साबिक सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन पर जाकर टिक गई और मैंने उसे हैरान होने का मौका फराहम किया और तहखाने की सूरत हाल का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं मुतमईन होकर तहखाने से बाहर निकल आया। वहां पर मौजूद अफराद ने हासी शराफत का सबूत दिया। वे ऐसे शरीफ तो नहीं थे, हालात ने उन्हें बेबस करके रख दिया था। वक्त बड़ा सितम ज़रीफ है, ये बड़े से बड़े फितना परवर को भी शराफत के मुजाहरे पर मजबूर कर देता है। मैं तहखाने से बाहर आने से पहले एक फैसला कर चुका था और वो फैसला ये था, अपनी जंग आप लड़ने का। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता था कि मैं दूसरों को इस जंग का ईंधन बनाऊं। सदफ हालनुमा कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसके पास आकर कहा, चलें? वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, फौरन चलें, एक लम्हे की ताहीर मुनासिब नहीं। सदफ, मैंने उसके साथ कदम उठाते हुए कहा, तुम यहाँ से सीधी फरीद पाशा की गुलबर वाली कोठी में जाओगी, या तुम चाहो तो अपने मामू के घर भी वहां से जा सकती हो। मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा देता हूँ। वो एकदम रुक गई। मैंने बात ही ऐसी की थी कि उसे ठटकना पड़ा। वजदान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं बेहद संजीदा था। साहिल तक पहुंचना और उसे हासिल करना मेरा मसला है। तुम हामा खुद को किसी मुसीबत में ना डालो। ये तुम अचानक बेरुही की बातें क्यों करने लगे हो? हाँ, मैं ऐसा ही बेरुहा हूँ, मैंने सफाकी से कहा। मैं इन हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, वो चट्टानी लहजे में बोली। तुम अगर चाहो तो भी मुझे रोक नहीं सकोगे। मैंने हैरत से उसे देखा। वो एक तरह से मुझे चैलेंज कर रही थी।
उसका जज्बा बड़ा ही ताकतवर और सच्चा था। एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर मैंने इससे राह बदलने की कोशिश की तो वो बाकायदा मुझसे भिड़ जाएगी। उसके तेवर में बेइंतहा ज्यादा जारहानापन झलक रहा था। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं होगा सदफ, तुम बिला वजह जिद ना करो, मैं घंटे भर में वापस आ जाऊंगा। तुम 1 घंटे की बात कर रहे हो? वो होंठ भींचते हुए बोली, मैं एक लम्हे के लिए भी तुमसे अलग नहीं हो सकती, और मेरी ये जिद बिला वजह नहीं है। साहिल तुम्हारे लिए बहुत बहुत अहम होगी, लेकिन तुम भी मेरे लिए कुछ कम अहम नहीं हो। सदफ ने एक ऐसी बात कह दी कि मेरे पाँव में गोया एक जंजीर सी पड़ गई, और मुझे यूं महसूस हुआ कि वो जो कुछ कह रही है वो अटल है। उसका अज़म और इरादा माउंट एवरेस्ट को शर्मा रहा था। उस जिद्दी लड़की की संजीदगी ने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। सदफ की जिद में इतनी अपनाहियत और जानिसारी थी कि मैंने हथियार फेंक दिए। फरीद पाशा ने 1 घंटे बाद फोन करने को कहा था। अब इस बात को लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे। मेरी रिस्ट वॉच 4 बजा रही थी। मैंने कोठी से रवाना होने से पहले पाशा को फोन करने का फैसला किया। ऐन मुमकिन था कोई चौंका देने वाली अहम बात पता चल जाती। मैं जिस मुहिम के लिए निकलना चाहता था उसके अंजाम के बारे में कबल अज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं सदफ को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां टेलीफोन की सहूलत मौजूद थी। हमने गुज़श्ता रात यहीं से फोन करके अपने लिए टोयोटा करोला मंगवाई थी, जो उस वक्त कार पोर्च में खामोश खड़ी थी। मैंने रखवाली में पाशा की हवेली का नंबर मिलाया। अब ये फोन नंबर मुझे जुबानी याद हो गया था। वैसे भी अहम चीजों को याद रखने के लिए कोशिश की जरूरत नहीं होती। तीसरी घंटे पर फोन रिसीव कर लिया गया। रिसीवर पाशा के छोटे भाई नवीद ने उठाया था। मैंने अपना तारफ करवाने के बाद उससे भरपूर ताजियत की। उसने फरीद पाशा से मेरी बात करा दी। फरीद ने ऑनलाइन होने के बाद मुझसे पूछा, यार मैं 1 घंटे से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने उसे अपनी मसरूफियात से मुख्तसिर आगाह किया और फिर पूछा कि रखा वाली से कोई हाँ सबर आई है? बहुत ही हाँ सबर है, वो गहरी संजीदगी से बोला। वजदान, तुम्हारे वजदान ने बहुत ही ठीक काम किया है। साहिल को आज सुबह रखा वाली से एक सफेद एम्बुलेंस पे रवाना किया गया है। मुझे पता चला है कि गुज़श्ता रात कराची से कुछ बंदे रखा वाली पहुंचे थे। उनमें से एक ने छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी हुई है। वो दोनों भी एम्बुलेंस में साहिल के साथ ही थे, और चौधरी नवाजिश अली का बेटा फैसल भी उनके हमरा है, वही जिसने मार्शल आर्ट्स वगैरह का कोर्स कर रखा है। ये इतला चौंका देने वाली थी। मेरी मालूमात के मुताबिक जब मियां जाहिद हुसैन उसने जब साहिल को कराची से बाय रोड लाहौर रवाना किया था तो उस वक्त भी फैसल उस काफिले के साथ था। छोटी दाढ़ी वाले जिसका वो पाशा जिक्र कर रहा था वो कबीर शाह था। उसका मतलब ये हुआ कि मैंने एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में जो 2 लोग देखे थे उनमें से एक फैसल और दूसरा कबीर शाह का साथी था। एम्बुलेंस इतनी तेजी से मेरे करीब से गुजरी थी कि मैं उनकी शक्ल या हुलिये पर गौर नहीं कर सका था। मैंने फरीद पाशा से कहा कि छोटी दाढ़ी वाले शख्स का नाम कबीर शाह है और मेरे ये एक ताजा बताजा दुश्मन का खास बंदा है। मैंने फरीद पाशा को शुएब गौरी और उसकी तंजीम CFK के बारे में कोई खास बात अभी तक नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी मैंने मुबहम अंदाज ही इख्तियार किया था। वो तशवीशनाक लहजे में बोला, वजदान, लगता है चौधरी नवाजिश अली कराची वाले बंदू से कोई खास डील हुई है जिसके नतीजे में साहिल को यहाँ से रवाना किया गया है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है पाशा। मैंने तायदी अंदाज में कहा, यह लगभग 10 करोड़ रुपए की डील है। मेरे दोनों दुश्मन आपस में मिल गए हैं और अब मुझे इन दोनों से उनकी औकात के मुताबिक निपटना है। वो मेरे लहजे की संगीनी को महसूस करते हुए बोला, तुम थोड़ी देर पहले मुझे किसी मोहम्मद मंशा का जिक्र किया है जहाँ साहिल को पहुंचाया गया है। मंशा का चौधरी नवाजिश अली और कबीर शाह से क्या ताल्लुक? इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।